Yeah. So very good morning to all of you, students, teachers, speaker of today's talk, Dr. Pankaj Gupta और CRRI से जुड़े मेरे सभी साथी। मैं डॉक्टर नीलम जे गुप्ता, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSR CRRI के बिहाफ पे इस ATL लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस अटल टिंकरिंग लैब ATL योजना का उद्देश्य बच्चों के मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच आदि जैसे कौशल को विकसित करना है। इसका उद्देश्य हमारी लर्निंग प्रोसेस को और भी इफेक्टिव बनाना है। So today in this lecture series under ATL scheme, we have with us Dr. Pankaj Gupta, Senior Principal Scientist in CSR CRRI New Delhi. He is going to talk on a very interesting topic. It's natural disasters. Expect the unexpected. After this lecture, we'll provide you a link to attempt the quiz based on the lecture only, which you can attempt till 4 p.m. today. It will be based on the maximum marks and the minimum time taken by you. So without any further delay, now I invite Dr. Pankaj Gupta for his talk. Dr. Pankaj, over to you, please. Thank you, Dr. Neela. Can you see my presentation? Yeah, it's visible. Okay, let us start. Good morning to all young listeners. As you know, we are going to talk about the natural disasters, expect, and the unexpected. Sorry. It's not in a presentation, yeah. So we are going to know about the few natural disasters in this lecture, what accept and what is unexpected. So as you see in this slide, this is a satellite imagery of Indian subcontinent, and you can see India is surrounded by the three major sea. On the eastern side, Bay of Bengal, and the southern side, Indian Ocean, and here it is Arabian Sea. And in the north, you can see this white strip. This is mighty Himalaya, and it is developed due to the collision of Indian plate with the Eurasian plate. It's a subduction zone. And in the western part, you can see this brown patch. This is nothing but the Thar Registan, Thar desert of India. And geographically, India is situated in the north hemisphere close to the equator. And in such a position, geographical position of India, India is facing number of different kind of hazards, which we are going to discuss some of them. So a natural disaster is a major adverse event resulting from natural process of the earth, and these are the mainly earthquakes, landslide, lightning, tsunami, volcano, etc. So can you guess, friends, some natural disaster? You can write. Anyway, I will tell you. Earthquake, this is very common. Everybody knows about it. Landslide, this is also common, most common natural hazard. Cloud burst, जिसे हिंदी में बादल फटना कहते हैं, जिसमें एकदम से पानी गिर जाता है. Lightning, सुनामी आपने 2004 के बारे में सुना होगा, जो इंडिया भी जिसमें बहुत अफेक्टेड रहा, काफी लोग इसमें डेथ हुई. Volcanoes, hurricanes, tornado, floods, drought. So some of
the examples we will discuss in detail. Otherwise, we will touch upon others because of the time limitation. So let's take first of all Bhukam, earthquake. An earthquake is the result of a sudden release of stored energy in the earth crust that creates seismic waves. So, of course, just I want to give one example. This is a scale. Huh? This suppose this is a rock bag in the earth crust, and it has the under lot many pressure. So when pressure is releases, it started vibrating. So this vibrate generate the different type of waves, earthquake waves. Dr. So Pankaj, that way, we can say, yes, may I please. request you to please speak little bit in Hindi also, and you can use your cursor also so that student can understand well. Thank you. Thank you, Dr. Meena. Sure. So, earthquake, भूकंप को समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्थ स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. तो इसमें जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द four parts, which is inner core, outer core. We are interested in mantle and crust because earthquake event is happening in due to mantle, and it is happening in the crust. So let's see. Made up of viscous fluid responsible for all Earth's volcanic as well as seismic activity. Okay? Crust is the outermost shell of a Earth, has two distinct layers of continental as well as oceanic. These two types have different chemical composition and physical properties. If you see here in second picture, this is continental crust and this is oceanic crust. You see small layers. This is having around on an average 11 kilometer and depth, and under the Himalaya it goes up to 80 kilometers. So and this is the oceans. This is our ocean. Let's move another slide. And convection current, संवहन धारा और लहर, आप जानते होंगे, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा इसको फिजिक्स में, 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया होगा. ये a convection current is a process that involves the movement of energy from one place to another that occurs in the liquid. वो एक पानी जैसे पदार्थ में, मतलब लिक्विड में ही संवहन धारा बन सकती है. So here you can see mantle is a thick liquid, and you see this is a core, this outer core, and inner core has the maximum temperature is 6,000 centigrade, I think. And because this is a very hot part, so whenever the lava or magma touches with this one, it gets heated up. ये गर्म हो जाता है और गर्म उठ के ऊपर चला जाता है. Then it touches with the crust. This is relatively cooler. Then it cools down and then come back. Similarly here. So what we are getting here, this is going apart. Crust को वो तोड़ रहा है यहाँ पे, and नया crust बन रहा है because of the lava is coming up here. And other side, if you see, this is a subduction zone. Here, this earth crust is going down under the another plate because the volume, because of the surface tension, volume is fixed. Volume of the earth is fixed. So if there is some part of the crust is generating, so at another place it is going down under the magma, where it melts and it will be a part of the magma. Okay, is it clear? Sorry, here I would like to show you the same thing. Here you see this is a crust, oceanic crust.
Here, Iceland, you know, is a northernmost place where the Eurasian plate and the North American plates are going apart. So new type of crust is forming here because of the molten lava is cooling down here. And this is the best example. Himalayas, you can see Himalaya here. It is the Indian plate is going down under the Eurasian plate, and because of this factor and this collision, this because it's a bouncy effect on that, it is rising also. Some of the part is going up and making our Himalayas. So earthquake, Richter earthquake at the magnitude effects. It is a measure of the strength of the earthquakes. So this is given by the gentleman Charles Francis Richter. So the Richter scale is given here and the effect is shown on the right hand side. So generally we are interested, we are not interested in 3.5, 3.54 for common man point of view, क्योंकि ये जस्ट हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं कई बार, और इसको हम देखें तो इसे रेयरली कोई डैमेज, कोई पुरानी बिल्कुल ही टूटी फूटी बिल्डिंग होगी वही से इफेक्ट होगी. But when it goes up to 6, at most slight damage to well-designed, there is a well-designed damage can cause major damage to poorly constructed buildings. जो कि अच्छी नहीं बनाई गई है, मजबूती के साथ बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, उसमें ये डैमेज ज्यादा हो सकता है. Similarly, 6.1 to 6.9 can be destructed in areas up to 100 km, or 7 to 9 is a serious damage over the larger area, and 8 or 8 plus, it can go several 100 km across. So it's fact. Yeah. Just I would like to tell you one more thing. Not only magnitude, time is also important. How much time it lasts. If earthquake hardly 10 seconds, then damage will be low. At the same intensity earthquake, if it is lasted for minute or so, so damage will be more. So these 2 points are very important in case of earthquake. So this is the frequency of occurrence of the earthquake. You can see here. See 8 point and higher, it comes once in a year. 7 is just statistics. So from the last many years they have collected and they have shown this statistics. So 6.0 to 6.9, it is 139. Others, there are so many. We are, so many earthquakes are coming daily, but they are very feeble. They बहुत हल्के होते हैं जिसको हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं. So leave this. These 3 are important for us. So worldwide earthquake related deaths is around 2000 to 2020. Okay, and if an average magnitude एक earthquake strikes, then 10,000 people can die. So an earthquake can trigger landslides, as you know, fire. It can trigger fire. Tsunami. You must have heard about the tsunami, Japan tsunami. आप लोगों ने पिक्चर देखी होंगी जापान सुनामी की कि कितना हाई वेव्स आती हैं और वो कितना डिस्ट्रक्शन करती हैं, कितना लॉस होता है. जापान जैसे एडवांस कंट्री में भी उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है. Flood, of course, this is again related to the landslide and flood. And in 1999, Chamoli earthquakes occurred on 19th March, 6.6 magnitude. It is around 1 minute or so, lasted 1 minute. Chamoli district in the Indian state of Uttar Pradesh. At that time, it was Uttar Pradesh, not the Uttarakhand. Approximately 103 people were died in the earthquake. So people generally die not because of the earthquake, because of the faulty structure.
in Chamoli, I remember in Tiri earthquake in 1989, so many people were died because of the heavy, faulty construction of their houses, not because of the earthquake. If we have made earthquake resistant buildings, then we can save ourselves. So what to do when the earthquake comes? So it is written here, of course, but you see, if you are inside a building, नीचे झुको, मेज के नीचे या किसी मजबूत चीज के नीचे जो थोड़ा लोड सहन कर सकती हो, एंड कवर योर हेड। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारा जो है सब कुछ है जिसकी वजह से हम लोग गवर्न होते हैं। तो हेड को कवर करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर इन द कार, स्लो डाउन, पुल ओवर, यानी कि आप अपने शीशे चढ़ा लें और उसके अंदर रुकें जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता। सिमिलरली लिफ्ट का प्रयोग ना करें, उस केस में आप स्टेयर केस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इफ यू आर आउटसाइड, स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास डोर्स बिकॉज इट कैन इंजर यू, ओके। So now let's talk about the landslide. These are some of the photographs which are showing the landslide, how mighty it could be. You see, these are the very big trees. This is the lower portion of that landslide. This is a multiple rotational failure. Even in a ground is very gentle, even though we can get some of the landslide. This is road. Road is, circular failure is there, so it is tilted backward and it is no more be useful for traffic purpose. आप ये सब देख रहे हैं, ये चमोली अर्थक्वेक की एक फोटोग्राफ है जिसमें इतना पोर्शन रॉक का एक वेज फॉर्म में निकल गया है। This is a big wedge. You can see this gentleman is standing here. And the failure took place along this intersection of these two planes. So landslide, how we can define it? It's a downward as well as outward movement of slope forming material under the influence of gravity. So landslide is the most common hazard in India as well as in other countries worldwide also. So in एक आसान शब्दों में हम लैंडस्लाइड को कैसे डिफाइन करें? लैंडस्लाइड इज ए टग ऑफ वार, रस्सा कशी जिसे हम बोलते हैं। इसके बीच में रेजिस्टिंग फोर्सेस एज वेल एज ड्राइविंग फोर्सेस। रेजिस्टिंग फोर्सेस होती हैं क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, रॉक मटेरियल, सॉइल, और ड्राइविंग फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक स्लोप स्टेबिलिटी को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ के नाम से, which assumes a plane of failure parallel to the slope. अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम है, यानी कि हमारी ड्राइविंग फोर्सेस ज्यादा है, तो स्लोप अनस्टेबल होगा, लैंडस्लाइड होने के चांस होंगे, लैंडस्लाइड हो जाएगी। इफ इट इज 1, इट्स ए क्रिटिकली स्टेबल। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, कभी भी गिर सकता है, तो स्लोप इज क्रिटिकली स्टेबल या अनस्टेबल कह सकते हैं। When slope factor of safety is greater than 1, तब हम ये कह सकते हैं कि ये स्लोप हमारा जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन कभी कभी और एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं जिसकी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर सफिशिएंट नहीं है, 1.1 है, वेरी क्लोज टू 1, देन इट कैन फेल। तो व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स? हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, इंटरनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो इजीली नापे जा सकते हैं, जैसे स्लोप डायरेक्शन हो, स्लोप हो गया, हाउ मच स्लोप इट इज, है उसकी हाइट कितनी है, रॉक कौन सी है, पानी है क्या नहीं है उसमें, और वेदर इट इज कवर्ड विद वेजिटेशन और नॉट। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको हम नाप नहीं सकते, ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं लैंडस्लाइड को,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी एकदम से डाउन कर देते हैं एंड लैंडस्लाइड कैन टेक प्लेस. सो कैन यू टेल मी, ओके, दिस इज अर्थक्वेक और large scale, I mean, earthquake as well as torrential rains which cover a larger area, so that we cannot measure actually for particular slope. Sorry. तो इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड क्या हो सकता है, इन फोटोग्राफ से ही देखकर आपको पता लग रहा होगा. लॉस ऑफ लाइफ, आदमी और जानवर दोनों ही मारे जाते हैं. लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज, पर्सनल एज वेल एज गवर्नमेंट. लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, they can be damaged and of no use. Loss of fertile soil, इसमें स्लाइड करके फर्टाइल सॉइल जो है वो निकल जाती है. तो रॉक एक्सपोज होगी, उस पर पेड़ पौधे आने मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है. Locally change in the fauna and flora species because of the change in the I mean topography of that area. So the fauna और flora जो होते हैं हमारे species होते हैं, उनमें भी बदलाव आ सकता है. और सबसे खराब चीज जो होती है लैंडस्लाइड की, वो एक टेम्परेरी डैम बना सकता है. इंडिया में देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन अर्लियर डेज. In I remember in 1976 or 78, there was a dam after Chamoli area, temporary dam, because ये temporary मिट्टी आके रास्ता बंद कर देती है उसका स्लाइड से होकर, स्लाइडेड मटेरियल रास्ता बंद कर देता है रिवर का, और पीछे एक डैम बन जाता है. Because it's not man-made, it's a temporary, or it doesn't have the factor of safety enough. तो ये कभी भी ब्रीच कर सकता है, टूट सकता है. और जब ये टूटता है तो नीचे जो होता है एकदम से फ्लड आता है, इसमें लोग डूब जाते हैं. जब ये आया था तब उसके नीचे श्रीनगर एक एरिया टाउन है गढ़वाल का, उसमें 50 मीटर तक पानी चला गया था. और हरिद्वार में पहुंचते पहुंचते जब 2 दिन बाद पहुंचा तो उसमें 5 मीटर पानी गंगा में बढ़ गया था. तो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, टेम्परेरी डैम्स. तो अगर देयर आर सम पॉइंट्स by which you can say कि okay, there are chances of landslide. One is springs, seeps or situated ground in area that have not typically been wet before. यानी कि जो पहले से भीगे नहीं थे वो भीग गए, कहीं से सीपेज पॉइंट आ गया, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि there is something fishy. There are chances of landslide. Development of cracks, bulges means उभरना, बार in the ground, वो भी एक इसका कारण हो सकता है लैंडस्लाइड शुरू होने से पहले. Faint rumbling sound that increases in volume is noticeable as the landslide nearer. Soil moving away from the foundation, because of the movement, soil can be move away from the foundations. Broken water lines and other underground utility, because it's partially moving from one side or other side. So these lines cannot, utility pipes and water pipes cannot bear this pressure. So वो टूट जाती हैं. Tilting, leaning of trees, as you can see here, because tree is trying to grow up. As it moves down, it grows up. So it makes a curve here. It shows there is a movement here. Unusual sound as tree cracking, offset fencing of drainage pipes, sunken down, dropped road or ground. एकदम से subsidence हो गया रोड में, रोड नीचे बैठ गई और उसमें ग्राउंड नीचे बैठ गया. तो these are the indication. Sinking, sticking doors and windows, visible open spaces, jams and frames out of plumb. जब हमारी खिड़कियां दरवाजे अगर ये जैम होने लगे, खुले नहीं, तो इसका मतलब there is some movement is there. So we should be alert and we should check. We should tell the authorities all these things,
so that they can check and they can take the safety measures. तो ये कुछ एरियाज होते हैं जो कि लिस्टेड हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें अपना कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे एन एग्जिस्टिंग ओल्ड लैंडस्लाइड अगर एरिया है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, और बेस, उसके बेस के ऊपर, बिकॉज it doesn't have the factor of safety enough to be there. जरा सा भी कुछ चेंजेस अगर फैक्टर्स में होगा तो it can start again. Close or at the river bed, dry or less water streams. This is very dangerous. Very dangerous. I have seen many examples in Himalayas where people have died because the water, it takes its own course once in a while. अपना पूरी रिवर बेड में वो पानी आ जाता है, और जो लोग बाग पानी के पास हैं, थोड़ा प्लेनर एरिया है, घर और अपनी खेती बाड़ी कर लेते हैं, वो सब खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं उसमें लोग। इसलिए ये जगह अवॉइड करना चाहिए। एट द बेस टॉप ऑफ एन ओल्ड हिल स्लोप्स, वो क्योंकि अच्छे से जमा हुआ नहीं होता तो उसमें चांसेस ऑफ फेलियर हैं। डेवलपमेंट ऑफ हिल स्लोप्स वेयर each field specific system are used, जहाँ पे I mean क्या कहना चाहिए, वाटर क्लीनिंग सिस्टम हो, ऐसी जगह पे भी सेप्टिक सिस्टम्स का हमें अवॉइड करना चाहिए। So these are the some landslide warning signage whenever we drive to Himalaya or some other hilly area. We should see whether it is there or not. If it is there, we should be very careful passing through that area. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी हम अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों को, नहीं तो हम कार्टून की शेप में भी बनाते हैं, तो कार्टून की शेप में लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग बात समझ जाते हैं कि लैंडस्लाइड यहाँ पे हो सकती है। तो वी शुड बी केयरफुल जब हम लोग ड्राइव करें पहाड़ी इलाके में। तो लैंडस्लाइड हजार्ड कैन ट्रिगर द लैंडस्लाइड्स, hazards which can trigger the landslides. वो क्या है? earthquake. Earthquake can trigger the landslide. Cloud burst, torrential rains. ये स्लोप को पूरा वेट कर देती हैं और थोड़े समय में इतना पानी आता है कि पोर वाटर प्रेशर, पानी का प्रेशर अंदर इतना बढ़ जाता है कि लैंडस्लाइड हो जाती है। वॉल्केनो इरप्शन, बिकॉज it creates the waves. So the factor of safety goes down नियर बाई स्लोप्स और वो फेल हो सकते हैं। फ्लड की वजह से टो कटिंग हो जाती है, जब नीचे का टो सपोर्ट निकल जाएगा तो ये फेल हो जाते हैं स्लोप्स। तो हियर यू कैन सी टू फोटोग्राफ्स वेयर लैंडस्लाइड टुक प्लेस एंड हाउ डेंजरस इट इज। यू कैन सी हजार्ड विच कैन बी ट्रिगर्ड बाय द लैंडस्लाइड। उल्टा भी है, लैंडस्लाइड से भी कुछ चीजें दूसरे अर्थक्वेक जैसे ट्रिगर हो जाता है। मान लीजिए एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई तो उसके आसपास के कुछ दूर तक एक शेक, एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग आएगी, जिससे और भी लैंडस्लाइड हो सकती हैं और चीजें टूट और खराब भी हो सकती हैं। तो इट कैन क्रिएट लोकली अर्थक्वेक। टेम्परेरी डैम, इट कैन मेक ए टेम्परेरी डैम व्हिच कैन फाइनली टर्न इनटू द फ्लड, हाई फ्लड। तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। सुनामी जो सबमरीन लैंडस्लाइड होती हैं उसमें वर्टिकल कॉलम वाटर का वो डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है। और जो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी आई हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से ही आई हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। डॉक्टर पंकज, यस डॉक्टर, कॉमन मैन की हम समझना चाहें तो क्या हम फॉरेस्ट को ज्यादा ट्रीज लगाने से क्या हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं, या क्या डिफॉरेस्टेशन की वजह से ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं? क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रीज जो है जनरली दे सपोर्ट, ये एंकरिंग का, उनकी जो जड़ें होती हैं वो एंकरिंग का काम करती हैं और स्लोप को, खासकर सॉइल स्लोप्स को पकड़ के रखती हैं और रॉक्स को भी। लेकिन अगर फेलियर बहुत डीप है तो ये एक वेट का काम करेंगे, तब इस केस में ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो काम नहीं करेंगे।
तो उससे ज़्यादा उसमें घास श्रब्स वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की लैंडस्लाइड है, बट इन जनरल 90% केसेस में घना जंगल जो है वो स्लोप्स को स्टेबल करता है। इज इट क्लियर? Yeah. Thank you. Yeah, please. Thank you. Cloud burst. This is another hazard which is increasing in number nowadays because uh, our weather system is changing, our climate is changing. So earlier we have seen rarely in Himalayas. Now it is very common in Himalayas. Not only in Himalayas, it is common in southern part of India, where जहाँ पे हम लोग समझते थे कि ये हिस्सा हमारा जो है स्टेबल है, यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती है, वहाँ पे भी क्लाउड बस्ट आजकल बहुत होने लगे हैं। केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लाउड बस्ट। ये क्या है? इट इज अ सडन एग्रेसिव रेन स्टॉर्म falling for a short period of time on a small geographical area. तो उस एरियाज में ये एकदम से हाई फ्लड सिचुएशन पैदा कर देता है। मेट्रोलॉजिस्ट सेज कि व्हेन इट इज मोर देन 10 mm or 4.94 inches per hour, then it is called cloud burst. Otherwise, it is not cloud burst. It could be heavy rains. So this is the definition they have given. The phenomenon occurs due to sudden upward drift of moisture-laden clouds. जो मॉइस्चर्स, जो पानी से भरे हुए क्लाउड्स के ऊपर उठने की वजह से होते हैं, एंड एज ए टॉल वर्टिकल कॉलम टर्म कुम्बोलोनिमस क्लाउड्स। ये एक बड़े खतरनाक क्लाउड्स होते हैं, इसमें चार्ज होता है। द ascending moisture-laden clouds become heavier at the certain points. They produce a violent rainstorm within a short interval. So ये जब इनमें आपस में कोलिजन होता है तो इसमें चार्ज भी क्योंकि मूवमेंट की वजह से तो इसमें चार्ज भी डेवलप हो जाता है। तो नीचे की तरफ ये नेगेटिव चार्ज होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से लाइटनिंग भी होती है और इस चार्ज की वजह से दे हैव more capacity to hold the water. So when this charge is, discharge these clouds, so sudden they pour the all water to the surface. So cloud burst can be dangerous and can also prove fatal as they have capacity to trigger flash flood. Is no time depending on the amount of rainfall in the region. The most disastrous cloudburst was reported in India in the year 2013, in which at least 5,400 people were killed and affected 4,200 villages. You see, this is an official record. Unofficial record is much higher. And I would like to show you a small film. Is a clip by the Peter, and you may enjoy this. See, you have seen this cloudburst. It's a very rare picture shooted by Mr. Peter, and we are lucky to see this film. ये ऐसा लगता है जैसे बादलों में से ऊपर से किसी ने बाल्टी भर भर के पानी लुढ़का दिया हो एक साथ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक साथ ये पानी गिरेगा तो नीचे कितना फ्लड हो जाएगा, और उसमें लोगों को टाइम नहीं मिलता है बचने के लिए। तो ये जनरली हिली एरियाज वगैरह में होता है,
लेकिन प्लेन एरियाज में भी आपने बॉम्बे सुना होगा, बॉम्बे में कुछ साल पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो दैट वाज ए क्लाउड बर्स्ट. Similarly, it happened in Chennai also earlier, long back, where so many people were dying. So now we'll switch over to lightning, a brilliant electric spark discharge in the atmosphere, occurring within a thunder cloud, between clouds or between a cloud and the ground. तो लाइटनिंग आपने सुना होगा कि बिहार में, यूपी में लाइटनिंग हुई और बहुत 5 लोग मर गए, 10 लोग मर गए. तो दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया स्पेशली, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल. तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमको लाइटनिंग जब हो रही हो तो हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो these are the some points which are listed here. I will go one by one. Immediately get off elevated areas such as hill or mountain ridges, because ये सबसे पहले जो ग्राउंड होता है, जो पास की चीज होती है, उस पे गिरती है. तो इस जगह पे से हमें हट जाना चाहिए. नेवर लाइज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. अगर आप फ्लैट ग्राउंड पे लेटेंगे तो योर सरफेस एरिया विल बी मोर और चांसेस ऑफ affected by the lightning will be more. तो फ्लैट हमें लिखना नहीं है. नेवर शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड ट्री, क्योंकि आइसोलेटेड ट्री सबसे ऊंचा हुआ उस जगह पे, और लाइटनिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे कि वो ट्री के ऊपर पड़े. जब ट्री के ऊपर वो लाइट पड़ती है जिसका टेम्परेचर लैक्स में होता है सेंटीग्रेड, और विद इन नो टाइम जितना भी मॉइस्चर है ट्री के अंदर, ये उसको वेपर्स में बदल देता है. और उससे क्या होता है, जो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है पेड़ को, और पेड़ के तने के टुकड़े निकल के गोलियों की तरह से वो बाहर की तरफ मूव करते हैं. अगर कोई जानवर या कोई वहां पे ह्यूमन बीइंग वहां पे है तो वो बुलेट्स की तरह से काम करेंगी और वो डेथ होने के पूरे चांस. तो नेवर शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्रीज. So never use a cliff or rocky overhang for shelter, because अगर लाइटनिंग हुई तो वो गिर सकते हैं उसमें से पत्थर और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं. Immediately get out of and away from ponds, lake and other bodies of water, because ये पानी की तरफ लाइटनिंग अट्रैक्ट होती है. तो हम लोगों को इन जगह से दूर हट जाना चाहिए. हाँ, यू कैन, अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इंटरनेट पे भी इस तरह की फिल्म मिल जाएंगी जिसमें वाटर पॉन्ड पे लाइटनिंग होती ही है और कुछ लोग मारे भी जाते हैं. नेवर यूज अम्ब्रेला मेड अप ऑफ मेटल. तो मेटलिक जो अम्ब्रेला होते हैं, जब आप अम्ब्रेला लगा देते हो आसपास के सभी लोगों से, बाकी लोगों से या बाकी चीजों से ऊंचे हो जाते हैं. तो उस केस में क्या होता है, अगर लाइटनिंग होती है तो सबसे पहले आप अफेक्टेड होते हैं. इसलिए never use umbrella made up of metal at least. ठीक है. If the weather forecast calls from thunderstorms, postpone your trip. अगर weather forecast में thunderstorm आने का संभावना है तो आपने ट्रिप को पोस्टपोन कर दीजिए. ये हमेशा याद रखिए. When the thunder roars goes indoor, find a safe enclosed shelter. Safe shelters include homes, offices, shopping centers and hardtop vehicles with the windows rolled up. यानी कि विंडोज जो है वो ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, खुली हुई नहीं होनी चाहिए गाड़ी आपकी. सेफ्टी प्रिकॉशन, जब हम इंडोर में हो तब हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए. अवॉइड कॉन्टेक्ट विद वाटर ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म. डू नॉट बेथ, शावर, वॉश डिशेस, और पानी से दूर रहो आप. ठीक है, पानी के संपर्क में आपको नहीं आना चाहिए. लाइटनिंग कैन ट्रेवल थ्रू प्लम्बिंग, यानी कि पाइप से भी लाइटनिंग आ सकती है. तो इस चीज लिए आपको मना किया गया है कि आप पानी का कोई काम ना करें. अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इक्विपमेंट वेयर बाय विच लाइटनिंग कैन कम टू यू. तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड यूजिंग corded phones. Cordless is okay, but cordless नहीं करना चाहिए. कॉर्ड के थ्रू आपको वो इफेक्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है.
अवॉइड कंक्रीट फ्लोर्स एंड वॉल्स, उनके टच में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसमें पाइप्स वगैरह लोहे की चीजें होती हैं जिसके थ्रू लाइटनिंग कैन ट्रेवल और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए जबकि थंडर स्टॉर्म आ रहा हो या आने की संभावना हो, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। नाउ विल टॉक अबाउट द सुनामी। सुनामी जो है एक सीरीज ऑफ वेव्स है in a water body caused by the displacement of large volume of water, generally on an ocean on a large lake, that can create a tsunami. So how the tsunami occurs? You see this picture, these waves are moving towards the continent, and because of this obstacle, this is getting higher and higher. Is it okay? Seismicity. Tsunami can generate when the sea floor abruptly deformed or vertically displaced, overlying water when these earthquakes occur beneath the sea. So displacement of water column starts tsunami. So these are some examples. Indonesia in 2018, जापान में 2011 में आया था, चिली में 2010, और जो अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो 2004 इंडोनेशिया में ये हिंद महासागर इंडियन ओशन में ये भूकंप की वजह से ये डेवलप हुआ था। तो इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर आल्सो इफेक्टेड, एंड I think you must have seen the photographs also. और इसमें बहुत लोग इफेक्ट हुए थे, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, बहुत मिसिंग हुए थे। बट जो हमारे अंडमान निकोबार की जो हमारी जनजाति रहती है, वो लकीली दे लर्न फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, और वो लोग हायर पॉइंट्स पे चले गए थे और उनकी जान बच गई थी। हम लोग उस वक्त ये सोच रहे थे कि ये लोग तो शायद अनपढ़ लोग हैं, इनको मालूम नहीं है ये लोग, इनका क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दे हैव ब्यूटीफुल नॉलेज कि कैसे, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंडिकेशन ऐसा होता है साइड आपके बीचेस पे आने लगता है जिससे पता लगता है कि बड़ी वेव्स आने वाली हैं। तो वो लोग इस चीज को जानते थे और वो लोग बच गए, वो अंदर जंगल में ऊंची जगह पे चले गए थे। तो लैंडस्लाइड, सबमरीन लैंडस्लाइड, यस। एक बार साइस्मिसिटी यानी सुनामी और हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करें कि कैसे ये सुनामी आती है। ओके, जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक से क्या होता है कि रॉक्स टूट जाती हैं, और जब रॉक्स टूटती हैं जबकि वो समुद्र में हो तो उसमें क्या होता है, एक हिस्सा नीचे चला जाता है, एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, या फिर एक हिस्सा ऐसे इस तरह का भी फॉल्ट होता है जिसे हम थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं। आप अगर मेरे को देख पा रहे हैं तो इससे क्या होता है, पानी का एक बड़ा हिस्सा वो मूवमेंट की वजह से मूव कर जाता है, और जब ये मूव करता है तो पानी नीचे गश करता है, फिर उसको भरने के लिए दूसरा पानी आता है, फिर तीसरा आता है। इस तरह से एक लहर डेवलप हो जाती है। जब वो हमारे क्रस्ट, हमारे जमीन की तरफ आती है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से उसकी ऊंचाई और भी बढ़ जाती है ऊंचाई भी बढ़ जाती है, और ये सीरीज है, एक वेव आके नहीं रुकेगी, एक के बाद एक आती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वाटर आता है जिसका वेट इतना होता है कि वो कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। तो उसको हम लोग झेल नहीं सकते, बड़ी से बड़ी चीज भी वो टूट जाती है। तो ये आपने जापान की सुनामी में भी देखा होगा, इंडिया में भी देखा होगा कि किस तरह से नुकसान हुआ है हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, है ना जी। तो इज इट क्लियर? आई थिंक, या, थैंक यू डॉक्टर नीलम। लैंडस्लाइड, जो सबमरीन लैंडस्लाइड होती हैं वो भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, वो भी सुनामी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो सबमरीन लैंडस्लाइड होती हैं
जो भूस्खलन होता है वो आज तक की सबसे ऊंची जो सुनामी है वो उनकी वजह से आई। In 1958, when a giant landslide in Bay, Alaska, caused the highest wave ever recorded, which had a height of 524 meters, 1719 फीट ऊंची लहर। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग उस वक्त इससे ऊंची नहीं हुई, तो क्या हुआ होगा। Or in 1963, when a massive landslide from Montauk entered the reservoir behind the Vesuvius Dam in Italy, the resulting waves surged over the जो उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड की वजह से जो वेव्स डेवलप हुई वो 262 मीटर्स 860 फीट ऊंची जो बनी, जो कि 250 मीटर डैम से भी बड़ी थी। So this destroyed several towns. Around 2,000 people were died because of this tsunami. So landslide can create another hazard, और उसकी वजह से जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। Sorry. So time is limited. I think we should go fast. What is volcano? हम अब volcano की बात करेंगे। इंडिया में it is not common, it is not, so volcanoes are opening or vent. Okay, this is opening or a vent from the crust where the lava and the small rocks and steam erupt on the earth's surface. So this is called lava volcano. तो ये volcano बनता कैसे है, ये हम लोग इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा एस्थेनोस्फीयर यानी कि मांटल वाला एरिया है, और इसमें अगर हम देखें कि पूरा मेल्टेड हमारा लावा रहता है, ये मैग्मा रहता है, इट गोज अप इन द लिथोस्फीयर यहाँ पे, और यहाँ जमा हो जाता है क्रस्ट के नीचे वाले पोर्शन में। देन एक ये बैलून शेप में पकड़ लेता है, और फाइनली इट मेक्स द वीकेस्ट एरिया जो होता है वहां से निकल के ये बाहर आ जाता है, और इट फ्लोज डाउन ऑन दी अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे बहकर ये जम जाता है। और ऊपर देखें इसमें क्या आता है, हमारे ट्रोपोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में वॉल्केनिक इरप्शन, यहाँ रॉक गैस ऐश और लावा फ्लो, और वॉल्केनिक गैसेस ज्वालामुखी जिसे हम वॉल्केनिक ये वॉल्केनो बोलते हैं, गैसेस मिक्स विद दी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं। ये इस पिक्चर से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। इट्स अ बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कोशिश करिए मैंने सदैव शब्दों में समझाने की, मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ये भी मैं बता दूं कि ये दो तरह के होते हैं, अगर जिसमें अगर विस्कस है, एसिडिक है, तो ये एक ऊंचा पहाड़ सा बनाते हैं, और अगर ये बेसिक नेचर का होता है तो ये फ्लो दूर तक करता है और ये स्मॉल शेप बनाते हैं। तो इसे विस्कस वाला आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो हरिकेन, वी शुड टच हरिकेन आल्सो। ये टॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो कि रोटेटिंग उसमें होते हैं, और बीच में इनकी एक आई होती है जिसके चारों तरफ ये घूमते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 साइक्लोन आए थे, आप जानते हैं, मेरे ख्याल से आपने, मैं आपकी से बात नहीं सुन सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा कि 2 साइक्लोन, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न हमारे साइड पे आया था इंडिया के, और इसमें लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रहता है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट, थाउजेंड्स थंडरस्टॉर्म्स दैट प्रोड्यूस हैवी रेनफॉल, और ये इसका एरिया जो कवर करता है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में भी कर लेता है कभी-कभी। तो ये बहुत बड़े एरिया में, अभी जो दिल्ली में भी बारिश आई और जगह पे भी बारिश आई, ये इसका इफेक्ट था। तो व्हाट कॉजेस, ये we call tufan also in the Pacific and cyclone in the Indian Ocean. So hurricanes from over the warm ocean water of the tropics. When warm moist air over the water rises, it's replaced by the cooler air. If there is enough water, warm water,
the cycle will continue and the storm clouds and wind speed will grow causing hurricane in form. क्या होता है कि गर्म समुद्र के गर्म पानी है, गर्म हवा है, वो उठती है पानी को लेके और उसकी जगह ऊपर से ठंडी हवा आ जाती है, फिर वो उठती है, फिर इस तरह से साइकिल चलता है and then it start rotating also. So that way it forms. तो अभी डेडलीस्ट हरिकेन्स दो ही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। वो 1900 में एक आई थी जिसमें 8000 डेथ हुई थी और बहुत से लोगों ने कहा कि 12000 डेथ हुई है। द सेकेंड डेडलीस्ट स्टॉर्म हरिकेन इन लंका ऑफ लेक in 1928 with approximately 2500 लोग मारे गए थे उस केस में। तो हरिकेन जो है नॉट ओनली दिस, ये बहुत बारिश भी करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि लैंडस्लाइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, फ्लड भी हो जाता है। तो दिस टर्नेडो ए वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए cumulonimbus cloud to the earth, ranging in the width from a few meters to a kilometer and whirling at a speed between 40 to 316 miles per hour. Hurricane की speed generally more than 220 km per hour से ज़्यादा होती है, but इसकी रेंज कम होती है थोड़ा सा, और ये छोटा भी होता है, कई गुना छोटा होता है उससे, और ये कॉलम होता है। I remember in 1976 I was not in Delhi, but दिल्ली में एक इस तरह का टॉर्नेडो आया था जिसमें स्कूटर वगैरह बहुत सारे बाद में फोटोग्राफ्स आए कि पेड़ों पे टंग गए। तो इसके अंदर लो प्रेशर जोन होता है, इसमें जो भी चीज आती है वो ऊपर चली जाती है। तो क्या डिफरेंस है इसमें हरिकेन्स और इसमें तूफान एंड तूफान फ्रॉम द ओवर वाटर एंड this forms over water and are used. These tornadoes form over land and are much smaller in size. So ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लोकली होते हैं। इंडियन ओशन रीजन्स, हाँ अच्छा, अब इसका आपने सुना होगा कि सब रोजा आया है, ये आया है, हाँ कटरीना आया है, इनका सब नेमिंग होती है। तो नेमिंग जो है बाहर एशिया से बाहर तो जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी, बट एशिया में ये नेमिंग जो है वो 2000 से शुरू हुई। तो जो फार्मूला बना था वो उसमें 8 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। All contributed as a set of names which are assigned sequentially whenever a cyclone storms develop. तो जहाँ जिसके एरिया में डेवलप होता था वो उसका नाम देता है। तो इस तरह से नेमिंग शुरू हुई इन हरिकेन्स की। ठीक है, नाउ विल क्विकली स्विच ओवर टू द फ्लड। तो फ्लड क्या है? ए टेम्परेरी राइज ऑफ वाटर लेवल एज इन अ रिवर और लेक और अलॉन्ग ए सी कोस्ट रिजल्टिंग and it's spilling over and out of its natural or artificial boundary. जब पानी रिवर में, लेक में या आपके सी कोस्ट पे हो, जो कि जो नेचुरल बाउंड्री है जिसके दूसरी तरफ सूखा है, अगर उसको पार कर जाता है देन वी कैन से कि ओके बाढ़ आ गई, साहब फ्लड हो गया। ठीक है, फ्लड्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय द एक्सेसिव रन ऑफ फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और स्नोमेल्ट और by the coastal storm surges or other tidal phenomena. तो इन सब की वजह से फ्लड पैदा होता है। एक क्लाउड बस्ट इसमें छूट गया है, क्लाउड बस्ट भी की वजह से भी आजकल फ्लड आते हैं। और इन फ्लड से क्या क्या होता है, कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे जीवन को? डिजीज पैदा कर देते हैं, बहुत सारे जानवर उसमें मर जाते हैं, आदमी भी मर जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी। तो उससे डिजीज पैदा होती है उनके सामने से, लॉस ऑफ हैबिटेट, बहुत लोग मर जाते हैं जैसा मैंने बताया। हाउसेस, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड, हाउसहोल्ड वेस्ट गेट इनटू द वाटर सिस्टम, पावर आउटेज हो जाती है, बिजली नहीं आएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। और आपने देखा ही होगा कि हर साल की तरह से इस बार भी हमारे यहाँ
बहुत बाढ़ आई और उसमें कई लोग मारे गए, कई लोगों के घर टूट गए, कच्चे घर भी होते हैं बहुत सारे लोगों के, और मतलब सेकंड स्टोरी तक पानी पहुंच गया कई जगह पे। Sometimes in Maharashtra, I have seen in Raigad district or somewhere. I don't remember exactly, but what happened कि वहाँ पे हाई टाइड्स आई हुई थी, पानी समुद्र का काफी लेवल हाई था और उस वक्त ये टॉरेंशियल रेन्स हुई, 750 mm तक बारिश हुई एक दिन में, तो जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया, सेकंड फ्लोर से भी आधा फ्लोर डूब गया था। आई हैव सीन देयर आर, वो कूड़ा करकट फंसा हुआ था, तो उस चीज से भी पता लगता है कि पानी का लेवल ये रहा होगा उस वक्त। तो उसमें बहुत सारी कारें वगैरह जो हैं वो समुद्र में फिर फाइनली बह के चली गई, या बहुत सारी कारें और बहुत सारा सामान तो लोगों का गया ही, और जो बच गए वो खराब हो गए। तो एक बहुत सारा नुकसान होता है इसका। अब सूखा, drought, a long period of abnormally low rainfall, especially one that adversely affected growing crop। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये ट्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमारे मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। यंग ट्रीज जो होते हैं वो जनरली खत्म हो जाते हैं, ड्राइड अप लेक्स हो जाती हैं, जो वाटर रिसोर्सेज पीने का पानी भी सप्लाई होता है वो भी मुश्किल हो जाती है। लैक ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली फॉर जो जंगली जानवर हैं उनके लिए बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो पालतू जानवर हैं उनको तो फिर भी हम लोग दे देते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देयरफॉर लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स आल्सो। इंक्रीज इन द डिजीज इन वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको ना दवा मिलती है ना खाना मिलता है, तो उनमें डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और माइग्रेशन, उनका माइग्रेशन भी होता है क्योंकि खाने को ढूंढने के लिए वो आबादी की तरफ निकल जाते हैं, तो ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होने लगती है। इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द इनलार्ज स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज, तो जो एंडेंजर स्पेसीज हैं उनके ऊपर और भी प्रेशर आ जाता है, वो वैसे ही कम है और कम हो जाते हैं। डिक्रीज इन दी वाटर टेबल, वाटर टेबल जो होती है पानी की, जिसमें हम नीचे से हैंड पंप के द्वारा या किसी मोटर के द्वारा पानी निकालते हैं, वो उसका लेवल भी नीचे चला जाता है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। लॉस ऑफ वाटरलैंड्स, ये तो पहले भी डिस्कस किया है, वाटरलैंड जो है श्रिंक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जो छोटी मोटी होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से आग पकड़ने का भी, आग लगने का भी जगह जगह डर बना रहता है, और उसको बुझाने के लिए पानी भी नहीं होता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ड्रॉट में हो जाती हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। तो आप लोग सब जो हैं बी विजिलेंट एंड बी सेफ। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Pankaj.